ਸਿਆਣਪ ਇਹ ਹੈ ਪੜਾਓ ਨੂੰ ਪੜਾਓ ਸਮਝੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਸਮਝੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਪੜਾਓ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ, ਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ। ਜੀ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜੀ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜੀ ਰਿਹਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜੀ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੜਾਓ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਕਲਮੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਪੜਾਓ ਪੜਾਓ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਔਰ ਸੋਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਘਰ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਿਤ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਿਤ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਨਿਤ ਦਾ ਸੋਗ, ਨਿਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਸੀਲਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਕੋਲ ਤਨ ਹੈ, ਵਿਕਸਤ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਧ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੂਝ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਤਨ ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨੀ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਮਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਮਨ ਹੈ, ਪਰ ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਘੋੜਾ ਤੇ ਹੈ, ਅਸਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਮੂਲੀ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਚਲਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਅਸਵਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਰੁਕੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਅਸਵਾਰੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਿਤਨੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦੇ। ਜਿਤਨੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਛਲੀਆਂ ਤੈਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੈਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਤਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਦੌੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸਰੀਰ ਹਾਥੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪੁਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਸੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,
बड़ी सूझ है, समझ है। इस सूझ बूझ नूं, इस ज्ञान नूं वरत के मंजिले मकसूद ते पहुंच सके सन नहीं है, दोवें रुके गए। इस वास्ते सारे विद्वानां ने कहा मनुख महान है, इहदे कोल तन भी है, मन भी है, असवार भी है, घोड़ा भी है। लेकिन होंदा की है, मनुख इस घोड़े की सही वरतों नहीं करता और रस्ते पड़ावां च ही भटकदा रह जाता है। हुण मैं अर्ज करा, धर्म जीवन का लक्ष्य है, बाकी सब पड़ाव ने। पड़ाव ने, पड़ाव छोड़ने पैंदे ने घर वास्ते। रस्ते च पड़ाव आया, अगे चले गए, दूजा पड़ाव आया, वो छोड़े, और आया, पड़ाव तो छोड़ने पैंदे। कहते ने जिस दिन हर तरह की प्यास समाप्त होती है, पदार्थ की प्यास, प्रभुता की प्यास, उस दिन प्रभु की प्यास पैदा होती, उस तो पहले नहीं होती। बड़ी प्रबल प्यास है परिवारक संबंधां की, बड़ी प्रबल प्यास है प्रभुता की, बड़ी प्रबल प्यास है पदार्थां की। उन्होंने समझ लेना चाहिए जे परमात्मा की प्यास होवे। सत्संग का लाभ, रोज रोज कथा कीर्तन सुनन का लाभ, अगर संसार की प्यास घटती जा रही है तो उम्मीद की जा सकती है निरंकार की प्यास पैदा हो जाएगी। अगर पदार्थों की प्रभुता की प्यास मिटती जा रही है, घटती जा रही है, तो प्रभु की प्यास, परमात्मा की प्यास पैदा हो सके। जिस जिस भी मनुख के अंदर ना पैदा हुई होवे ये प्यास, उन्होंने समझ लेना चाहिए अजे पदार्थों की प्यास बड़ी प्रबल है कि पदार्थों की खातर परमात्मा नूं छोड़िया जा सकता है, धन की खातर धर्म छोड़िया जा सकता है, परिवार की खातर करतार छोड़िया जा सकता है, प्रभुता की खातर प्रभु नूं छोड़िया जा सकता है। और छोड़ देंदे ने लोग जो प्रभुता नूं ज्यादा अहमियत देंदे ने प्रभु नूं नहीं, जो पदार्थों नूं ज्यादा अहमियत देंदे ने परमात्मा नूं नहीं। इस तरह हुण अपना मन तोड़ना है। परमात्मा नालों पदार्थों की अहमियत ज्यादा है तो फिर परमात्मा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। प्रभु नालों प्रभुता की प्यास बड़ी प्रबल है तो समझ लेना अजे हनूज दिल्ली दूर, अजे परमात्मा की प्यास की गल बड़ी दूर है। फिर कहते ने परमात्मा की प्यास एक ऐसी प्यास है, हिरदा हर तरह की प्यास तो जितने खाली ना हो पैदा ही नहीं होती, पैदा ही नहीं होती। तो हुण इस तरह फैसला कर लेना चाहिए जिस किसी के अंदर भी ना हो, क्योंकि हर मनुख अपना हिरदा पढ़ सकता है। मैं अपना पढ़ सकता, तुसीं अपना पढ़ सकते, कोई किसी का हिरदा नहीं पढ़ सकता। नहीं है प्यास तो अजे प्रभुता की प्यास बड़ी प्रबल होवेगी, पदार्थों की प्यास बड़ी प्रबल होवेगी। कदम कदम ते देखते हैं मनुख परिवार की खातर निरंकार छोड़ रहा है, दुनिया की खातर दीन छोड़ रहा है। दुनिया इतनी याद दे चाहे दीन ते भूल ही गया। दीन बिसारे हो रे दीवाने, दीन बिसारे हो रे भगत कबीर। भुल गया तू दीन नो, क्यों?
यादां विच दुनिया छा गई है। भुल गया तू प्रभु नो, कारण सिमरती दे ते प्रभुता छा गई है। भुल गया तू परमात्मा नो, यादां विच पदार्थ छाए ने। मैं फिर अर्ज करा रस्ते दे पड़ाव ने आणगे, इन्हां दी लोड़ है, पड़ाव ते आणगे। पर उदों भरम भ्रांति पैदा हो जाती है जब कोई पड़ाव नूं घर समझ बैठता है, बस यही ठीक है। तो पदार्थ ते मिल जाणगे, सुकून नहीं मिलेगा। प्रभुता ते मिल जाएगी, आराम नहीं मिलेगा। धन संपदा ते मिल जाएगी, बेचैनियां ते परेशानियां नहीं मिटेंगी। और दूसरा भी सुन लो, जितनी धन संपदा प्रभुता वधदी गई उतना ही मूर्ख होता जाएगा, उतना ही मूढ़ होता जाएगा, क्योंकि उतना ही परमात्मा नूं भुलदा जाएगा और उतना ही उसके जाल में फसदा जाएगा। तखत ते बैठा राज महलों विच बैठा होया भी जनक परमात्मा की प्यास दे जीवंदा है। इस वास्ते भाई गुरदास नूं कहना पिया कि बहुत वड्डा भगत है। भगत वड्डा राजा जनक है, गुरुमुख माया विच उदासी। प्यास परमात्मा की है। बैठा ते परिवार विच है, महलों विच है, प्रभुता कोल है, प्यास प्रभु की है। पदार्थों की कोई कमी नहीं, प्यास परमात्मा की है। दूजे पासे कबीर ने, रविदास ने पदार्थ से कुछ भी नहीं, पर प्यास परमात्मा की है, कुछ भी नहीं है। उपजीविका चलाने वास्ते पूरा धन भी नहीं है, प्यास से धर्म भी है। पिंड दे चौधरी भी नहीं ने, प्यास से प्रभु दी है। इसको पता चलता है हिरदे खाली हो गए ने, ताई ये परमात्मा की प्यास पैदा हुई है। और इस प्यास के पैदा होंदे होर कोई प्यास रह नहीं जाती, रहिंदी है। ये भी बहस कर रहे। ये प्यास पैदा होंदे फिर प्रभु तो बिना जीवना औखा हो जाता है। धन गुरु रामदास जी महाराज ने इसका इंज जिक्र किया है, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। प्यास पैदा किस तरह हो गई, किवें हो गई, बाकियां दे अंदर क्यों नहीं हुई? कारण की है? सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। गुरु दा बोल की सुनिया, तीर की तरह लगे, इसे तीर की तरह लगे, विन गया। बड़ा गहराई नाल सुनिया होवेगा, एक मन होके सुनिया होवेगा, पूरी एकाग्रता नाल सुनिया होवेगा, ताई तीर की तरह लगे। नहीं तो रोज मिलते ने, असी जी 10 पाठ कीते ने जपजी साहब के, गुस्ताखी माफ मैनू कहना पैंदा, चेहरा ते तेरा दसदा पिया, तो एक पौड़ी भी नहीं पड़ी, छाप ही तेरी चेहरे की दसदी भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़े होणगे 10 पाठ। असी जी पूरा सुखमनी साहब रोज पढ़ते हैं, एक पंक्ति की झलक भी नहीं मिलती तेरी जिंदगी विच। गहराई नाल सुनिया होवेगा, अंतस प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। शरीरक पीड़ नूं, शरीरक दर्द नूं सारे जानते हैं। किसी का कन दुखिया नूं पता है दर्द की होंदी,
किसी का दंद दुखिया नूं पता हुंदा है की होंदा। शरीर का कोई अंग दुखे है या बहुत सारे अंग दुखे उस दर्द का मनुख नूं पता होंदा। असाध रोगां दे दर्द का पीड़ा का मनुख नूं पता होंदा। तन नूं कोई चोट लग जाए, गहरी सट लग जाए अचानक, इस दर्द का भी मनुख नूं पता होगा। शब्द का तीर मन नूं लगे तो पीड़ पैदा होवे। ये मानसिक पीड़ है, ये तीर मन नूं लगता है, सूक्ष्म शरीर नूं लगता है, तन नूं नहीं। सुन के मन नूं लगता। सुन गुरु बचन मन तीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। तो ये तीर पीड़ ते पैदा करेगा। हुण होर भी सुन लो, दुनिया दे इतनी भयंकर पीड़ा होर कोई भी नहीं आती। जब शब्द का तीर लगता है तो पीड़ पैदा होती। भगत शिखर की पीड़ा चो लंघदे ने, बहुत भयंकर पीड़ा चो लंघदे ने। और इसका गुरबाणी दे बहुत बड़ा जिक्र है और भाई गुरदास ने बहुत बड़ा निखेड़ा किया है। भाई गुरदास जी भी कहते हैं इस पीड़ा वर्गी और कोई पीड़ा नहीं है। अक्सर जब ये तीर आ रहा आंदा है, असी मन एक पासे कर लेंदे, ना ही लगे। निशाना ते मन है, शब्द तीर है, निशाना साडा मन है। इनू एक पासे कर लेना, तीर चलते ही रह जाते हैं। एक एक पंक्ति एक तीर है, एक एक बोल वाहिगुरु वाहिगुरु एक तीर है। लगता नहीं, क्यों? मन ही ते निशाना इनू एक पासे कर लेंगे, लग जाता है, नहीं लगता। अगर लगे तो पीड़ पैदा होगी। इस वास्ते भगत कबीर ते रविदास पे कहने लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणयाले तीर। बहुत गहरा तीर ते बड़ी पीड़ पैदा करता है। दुखिया दर्द घने वेदन जाने तू धनी। संस्कृत का वेदन शब्द बड़ा कमाल है। ये दो अर्थ ने, इको ही समय दो अर्थ ने, इको ही समय दो अर्थ करने पैंदे ने। एक अर्थ नाल उस शब्द का अनर्थ हो जाता है। वेदन पीड़ा, वेदन ज्ञान। हद हो गई। इको ही समय इसके दो अर्थ क्यों करिए? अगे पिछे कुछ भी नहीं पता होंदा मूंह दे किन्ने क दंद ने। जिस दिन कदी कद दंद दुखदा है तो सारा ध्यान सारा ज्ञान उस दंद ते ही रुके होंदा, जिवें मैं दंद ही हाँ और कुछ भी नहीं। वेदन ज्ञान पीड़ा का होंदा है, और जिथे पीड़ा होंदा है ध्यान उत्थे होंदा है। ध्यान ते ज्ञान कट्ठे रहंदे। जिस विच मेरा गहरा ध्यान नहीं, उसका मैनू फिर ज्ञान भी नहीं है। जिस विच गहरा ध्यान होवेगा उसे का ही ज्ञान होवेगा। कि गहरा ध्यान पीड़ा करके आउंदा है, मुझे नहीं आता। अगे पिछे ते पता भी नहीं चलता मेरा सिर है भी सही कि नहीं। पर किसी दिन जब सिर दुखदा है, भयंकर पीड़ा होंदी है, सारा ध्यान मत्थे च आउंदा है, सारा ज्ञान मत्थे च आउंदा है, जिवें मैं मत्था ही हाँ और कुछ भी नहीं। वेदन पीड़ा, वेदन ज्ञान। एक औषधि है भारत आयुर्वेद कंपनी ने बनाई है। उस औषधि का उस दवाई का नाम रखे वेदना निग्रह रस।
वेदना नूं खत्म करने वाला रस, वेदना नूं खत्म करने वाली औषधि। वेदना पीड़ा, वेदन दर्द, वेदना पीड़ा बहुवचन, वेदना वेदन एक वचन, वेदन पीड़ा। वेदन ज्ञान, अगे पिछे ते मनुख नूं पता ही नहीं चलता। बंदे दे गोडे हैन भी नहीं, हैन भी सही कि नहीं, मतलब जिन दुखने आ जाते उस दिन पता चलता है जिवें बस मैं गोडे ही हाँ और कुछ है ही नहीं। सारा ध्यान, सारा ज्ञान उत्थे, अगे पिछे नहीं पता चलता। अखां हैन भी सही कि नहीं, पर जिस दिन कदी दुखने आ जाती, सारा ध्यान फिर अखां विच, सारा ज्ञान अखां विच। ध्यान ते ज्ञान दोवें इकट्ठे रहते हैं ते ध्यान अधिक पीड़ा दे चाहता, पीड़ा खिंचती है, पीड़ा ध्यान नूं खिंच लेती है। आप सारे सियाणे बैठे हो कि जरूर गल पकड़ते चाहेगी, होर तो मैनूं कोई लफ्ज़ लभदे नहीं पे। पीड़ा ध्यान नूं खिंचेगी। मनुख का सारा ध्यान उत्थे केंद्रित हो जाएगा जिथे दर्द है, जिथे पीड़ा है। कि जब सारा ध्यान उत्थे ही केंद्रित हो गया तो फिर ज्ञान भी हो गया। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है कि एक शब्द दे के दो अर्थ बयान हो जा, दो शब्दां की लोड़ नहीं, एक को। इस तरह की कला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बड़ी वरती है, जाप साहब दे भी ते बाकी शब्दों दे। इस तरह का एक पदा मैं थोड़े सामने रखा, जयदेव। क्योंकि संस्कृत का महान पंडित सी, जात तो ब्राह्मण सी जयदेव। बड़ा कीमती पदा है। दरबार साहब दे जिन्हों अखंड पाठी रखना हो कहते ने पदा पहले सुना, उंज नहीं रखते। मैनू चंगी तरह याद है ज्ञानी चेत सिंह कहते होंगे सने पढ़ के सुना, वो इम्तिहान लेंदे होंगे। संस्कृति श्लोक पढ़ के सुना, पठां दे सवैये पढ़ के सुना। नहीं सुना सकता, नहीं तू पाठी नहीं, तू पाठ नहीं कर सकता। परमाद पुरख मनोपे मन सत आदे भाव रतन, पर मद पुतन प्रतकृत परंत जगतंत सर्वगतन, केवल राम नाम मनोरमन बद अमृत तत्वमयम। परम आद दो शब्द ने, परम आद इहदे चों ऐड़ा कढ़ दिता है, प्रमाद एक कोई शब्द अर्थ दो कर दिता है। इस संस्कृत की जिस तरह है, मनो उपमन, मन की उपमा तो रहत, मन उसनों पूरा समझ नहीं सकता, इस वास्ते मन उसकी पूरी उपमा नहीं कर सकता। मनो उपमन ये भी ऐड़ा कढ़ देता, टिप्पी कढ़ दी, मनोपमन एक कोई शब्द अर्थ दो। परमाद पुरख मनोपमन सत आदे भाव रतन, पर मद परम अद्भुत दो शब्द ने। महान आश्चर्य, आश्चर्य किसनों कहते ने? वेखिए ते पूरा वेख ना सकी आश्चर्य, सुनिए ते पूरा सुन ना सकिए आश्चर्य, समझिए ते पूरा समझ ना सकिए आश्चर्य, कथन करिए ते पूरा कथन ना कर सकिए आश्चर्य। विस्माद आश्चर्य, उर्दू च कहते हैं हैरान कुन, भाई हैरान हो गए, हैरान कुन अवस्था बन गई। इस संस्कृत कहते हैं परम अद्भुत। दो शब्दों एक शब्द बयान कर दिता है, दो अर्थ एक ही शब्द, परम अद्भुतम। इस तरह वेदना ज्ञान, वेदना
पीड़ा, दर्द। ध्यान किथे आउंदा है? जिथे पीड़ा होवे। ते ज्ञान किस दा आउंदा है? पीड़ा दा। पीड़ा दा बड़ी रोचकता दे नाल, बड़े विस्तार पूर्वक लोकी अपने दुखों को सुनाते। आप सुन के हैरान हो गए। एक विषय है, हर मनुख बड़ा सोहना वक्त है कि दुख किसी को भी सुन लो, दे दुख बड़े सोहने ढंग नाल सुनाएगा, बड़े सोहने। हर मनुख, स्त्री पुरुष, दुखों का बहुत वधिया वक्त है। सुख का तो कुछ पता ही कोई नहीं। जिन्हों सुख समझदा वो है ही नहीं। हर सुख दुख दे बदल जाता है। इस वास्ते दुख दे वक्त ते सारे ही ने। किसी को बैठो, ढंग नाल बैठो तो रिश्ता ढंग का जुड़ जाए, वो अपने दुख ही सुनाएगा। सतगुरु कहते हैं, किस पे खोलो गंठड़ी दुखी पर आया। मैं भी अपनी दुखों की पंड किसी दे अगों खोलना चाहता कि हर बंदे को है कि दुखों की पंड तो इलावा और है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये भी महसूस कर, हर मनुख को दुखों की पंड तो इलावा कुछ भी नहीं है। सियाणा मनुख कतई दुखों की पंड किसी दे अगों नहीं खोलता। पता है क्यों? उन्होंने पता है मैं खोलिया तो अजे मैं अपना एक दुख सुनावांगा, उन्हें सैकड़े दुख सुनाने, चुप ही नहीं करना। तो की अपना एक दुख सुनाना, वो सैकड़े सुनने पैणगे। वो मेरी पंड होर भारी कर देगा। एक तो मेरी अपने दुखों की पंड एक हो सुना के भारी कर देगा। सियाणा मनुख अपने दुखों की पोटली किसी दे अगों नहीं खोलता। तुसी खोल के देखना, एक दुख अपना सुनाओ, हुण बाकी उहदे सुनो, वो चुप ही नहीं करेगा। किस पे खोलो गंठड़ी दुखी भरा आया। मैं अपने दुखों की पंड किहदे अगों खोला? अगला पहले ही खोल के रख देंदा। सियाणे मनुख नहीं सुनाते। ये गल वखरी है। सियाणे मनुखों को दुखों की पंड भारी बहुत ज्यादा होती है। सियाणे नूं दुख ज्यादा महसूस होता, छोटा भी वड्डा महसूस होता है। कारण सुचेत है, सियाणा है। दुख ना महसूस होवे, पीड़ा ना महसूस होवे, जगह नूं डॉक्टर सुन कर देंदा, ऑपरेशन करन लगे। इस वास्ते कुछ जानवर ने, कुछ पशु ने इतनी पीड़ा नहीं महसूस करते जितना मनुष्य करता। इस वास्ते कुछ विद्वानों ने, जीव शास्त्रियों ने ऐसा भी कह देता है, ऐसे भी जीव ने पीड़ा महसूस कर सकन इतनी समर्था ही नहीं है। जीव के दाणिया विच भी है, जेते दाणे अन्न के जियां बाज न को। अचेत ने पीड़ा महसूस नहीं कर सकते। घास दे विच भी जीव है, बड़ा प्रबल है। ये गल वखरी है, हिरदा कोमल हो जाए तो खेड कुछ होर बन जाती है। राबिया एक दिन घास पे बैठी थी ते कुरान पढ़ रही थी। हसन ने कहा, राबिया घास पे भी जीव होता है, तुम घास पे बैठे हैं। राबिया ने भी कहा, तू भी तो घास पे चल के आ रहे हैं, तुम भी तो लिताड़दा आ रहे हैं। और कह देता, मैनू एहसास कराया तो बेहतर है, पर मैं की करा, इस तो इलावा होर किथे बैठा। अचेत ने, अचेत सुचेत का वर्तन बलेगा है। अचेत सुचेत की खुराक भी है, ये भी महत्व है। घास नालों गवां
मझां भेडां बकरियां ज्यादा सुचेत ने, बनस्पति घास उन्हां दी खुराक है। भेडां बकरियां हिरनियां नालों खरगोशां नालों शेर ज्यादा सुचेत है, ये सब उन्हां दी खुराक है। खुराक कुदरत ज्यादा पैदा करती, जितना घास पैदा करती है जंगलों के, इतने हिरन नहीं है, इतने सांबर ते चित्तल नहीं है। पर ईश्वर जितने चित्तल हिरन पैदा करता है, इतने शेर नहीं है, उन्होंने खाने वाले इतने नहीं है। रिजक खाण वाले तो रिजक हमेशा ही ज्यादा होता है, तो फिर रिजक खाण वाला बाद विच पैदा होता है, रिजक पहले पैदा होता है। ये भी महसूस करते हैं। पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देते जंत उपाहा। रिजक पहले पैदा होता है, रिजक नूं खाण वाला बाद दे। ये उदाहरण एक बड़ा बाकमाल दिता है ईरानी सूफी संत ने। वो कहता है गमे रोजी मफुर, रिजक दा गम ना करें, उकी ना करें। क्यों? गमे रोजी मफुन मजन और के दफ्तर रा के पेशे अस्तिफल एजत कल कुनद पछताने मादर रा। मां दे असणा दे दुध पहले पैदा होंदा है, बच्चे का जन्म बाद दे होंदा है। रिजक पहले। शेख सादी, मैं क्यों गम करा? बच्चे का जन्म बाद दे चाहता है, रिजक पहले बन जाता है, पहले बन जाता है। पहले देते रिजक संभाहा, सतगुरां दी बाणी। पाछे देते जंत उपाहा, जो जितना अचेत है उस तो उच्चा जो सुचेत है उसकी वो खुराक है। ये भी महसूस करते हैं, उसकी वो खुराक। जितना सुचेत मनुख प्राणी होगा उतना पीड़ा ज्यादा महसूस करेगा, दुख ज्यादा महसूस करेगा। सारी कायनात देखो मनुख ज्यादा सुचेत है, इस वास्ते दुख इसनों ज्यादा महसूस होता है। फिर मनुखों विचों जिहड़ा दार्शनिक चिंतक फिलोसफर गहर गंभीर है, वो जितनी पीड़ा महसूस करता है आम मनुख इतनी नहीं करता। ये भी महसूस करते हैं, वो ज्यादा करता है क्योंकि ज्यादा सुचेत है। मैं हुणे अर्ज की है, जैसे जैसे कोई अचेत होगा पीड़ा घट महसूस होगी, घट महसूस होगी। कोई एक ऐसा भी होता है जिमें चलो इशारा कर देंगे, कुछ घोड़े ऐसे हैं जिन्हें चिर तक चाबक मारो ना नहीं चलते, कुछ ऐसे ने बस कौड़ा फिटकारना ते पैंदा, मारना नहीं पैंदा, चल पैंदा। कुछ सिर्फ आवाज करनी पैंदी है, चल पैंदे ने। पर अत्यंत सियाणा घोड़ा इशारे नाल ही चलदा, इशारे नाल ही चलदा। इसनूं इंज बयान किया जाता है, जिहड़ा मनुख सिर्फ इशारा ही समझ जाता है, बहुत सियाणा है, बहुत सियाणा है। कि जो कहण ते थोड़ा जिहा समझदा है, उन्होंने बकायदा अवस्थावां बनाईयां गईयां, नाम दिते हुए ने। जो इशारे नूं समझ जाता देवता है ते फरिश्ता है, जो कहण ते समझदा है मनुख है, ते जो कहण ते भी नहीं समझदा इहनूं मनुख कहण दी लोड़ नहीं, पशु है, पशु है। जिथे बोलिया भी व्यर्थ चला जाता है, जिथे बड़े बड़े अवतारां दे बोल भी व्यर्थ चले जाते हैं, जिथे गुरु पैगंबरां दे बोल भी व्यर्थ चले जाते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों के बोल भी व्यर्थ चले जाते हैं। इनू मनुख कहने की भी की लोड़ है, ते पशु है। इशारा समझदा है फरिश्ता है, देवता है। तो मैं अर्ज करा, जो इतना सियाणा मनुख है कि देवता है, इनू पीड़ा ज्यादा होवे, दुख ज्यादा होवे।
जितना मनुख चेतन होवे छोटी पीड़ा बहुत वड्डी लगेगी, जितना अचेत है बहुत वड्डी पीड़ा छोटी लगेगी। ये भी मैं किसी ਨੂੰ मामूली जिहा भी अपजस आत्म हत्या से मजबूर कर देता है, तो किसी का रोज पहाड़ा जैसा अपजस होता है, सिर से जो भी नहीं रही, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जितना सियाणा महसूस मनुख होगा उतनी मानसिक ते शरीरक पीड़ा ज्यादा महसूस करेगा, क्योंकि ज्यादा महसूस करने वास्ते उसके कोल ज्यादा समझ है, ज्यादा चेतना है, ज्यादा सुचेत है। यही तो कारण है जब ऑपरेशन डॉक्टर करता है अचेत कर देता है, सुन कर देता है, बेहोश कर देता है। बेहोश मनुख नूं पीड़ा नहीं होती, बेहोश मनुख नूं दर्द नहीं आता। जीव भी कई ऐसे ने जन्म तो लैके मरण तक बेहोश ही है, पीड़ा नहीं महसूस करते। मनुखों के जो सब तो ज्यादा सियाणा है पीड़ा महसूस करता है, और ये बहुत सियाणा मनुख होगा जिन्हों गुरु का शब्द तीर की तरह लगे। नहीं लगता, बथेरिया नूं नहीं लगता। तीर भी इंज लगे जिवें दिल दे च नहीं, पत्थर पे लगे। की लगे? कुछ भी नहीं लगे, कुछ भी नहीं लगे। ये चेतन नहीं है, अचेत है, जड़ है। हो रहा है पाठ, हो रहा है कीर्तन, हो रही है कथा, पढ़ रहे है बाणी, कुछ भी नहीं हो रहा। अचेत है, बहुत अचेत है। थोड़ा जिहा ध्यान देवेगा ਇਹਦਾ ਸੁਚੇਤਪਣਾ ਵਧੇਗਾ। मैं फिर अर्ज करा इसे वास्ते धर्म नो ध्यान साधना के, और जितना सुचेत होगा पीड़ा ਵਧेगी। गुरु रामदास जी महाराज फरमान करते हैं, गुरु का बचन की सुने तीर की तरह लगे, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर वचन मन तीर लगैया। इस शब्द ते तीर की तरह लगे तो पीड़ भी हो गई है। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। गुरु का शब्द सुन के पीड़ नहीं हुई, ये अचेत प्राणी है, सुता हुआ है, अचेत, कुछ भी नहीं है। अजय की अवस्था बनेगी सुचेत होगा, अजय नहीं। मन के बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। ये पीर दूजा किस तरह जाने ते लागी होए सो जाने पीर। कदी किसी का कन दुखे है तो उन्होंने पता है कन का दर्द की होता है। दाढ़ दुखी है तो फिर उसनों पता चलता है दाढ़ दुखण की पीड़ा की होती है। ये दर्द शब्द का तीर लगे होए, ये तो ऊंजी भी कोई हजारां च कर होता है, बहुत थोड़े होंगे। पर मैं करा रूहे जमीन ते इस तरह की कोई पीड़ नहीं जैसी ये पीड़ है। क्यों? ये मनुख जितना सुन सुन के सुचेत होता है, शब्द का तीर उसे नूं लगता, दूजे नूं नहीं लगता, नहीं लगता, पता ही नहीं लगता। इस वास्ते मैनू महात्मा बुद्ध की एक कथा याद आ गई है सामने। एक दिन एक चट्टान थी बहुत वड्डी, उन्होंने ढो ला के वडेरी उम्र दे हो गए सन, 84 साल तक जिंदा रहे ने महात्मा बुद्ध। बुजुर्ग हो गए सन, बिरध हो गए सन। उस पत्थर की चट्टान नाल ढो ला के बैठना ते अपने श्रोतियां नूं सुणांदे सन शाम दे समय। एक दिन गल निराली हो गई, चट्टान की तरफ मुंह कर बैठे, श्रोतियां की तरफ पिठ कर बैठे। इस तरह कभी होया नहीं।
ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਵਿਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਆਨੰਦ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਤੇ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰਫ, ਸਰੋਤੇ ਤੇ ਇਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬਦਲਣਾ, ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਝ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਧੰਮਪਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ, ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦਾ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ, ਵਨਕੀ ਵਨਕੀ ਦੇ ਪੱਥਰ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ, ਇੰਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਮਪਦ ਦੀ ਇਹ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੰਮਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਮਪਦ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਕਦ ਮਿਲਦਾ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਚੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਚੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਦੇਣ। ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਤਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਪੀੜਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ, ਸੁਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ। ਤੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਆਰੇ ਛੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਠ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਖੂਨ ਬਹੁਤਾ ਨਿਕਲੇ। ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਪਾਣੀ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਤੇ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੜਪਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੜਪ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੜਪ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੜਪ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਬਹੁਤਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਹਦੇ ਕੰਠ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਭ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ 'ਚੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਛੀਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਤਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਤਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਮਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੂਨ ਤਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਭ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਆਤੇ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਪਿਆਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਪਾਣੀ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਪਾਣੀ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, 10 ਬੰਦੇ ਜਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, 10 ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਧਿਆਨ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ।
शब्द हुण तीर की तरह लगे, ध्यान बहुता जाग गया, बहुता सुचेत हो गया, इन्हें तो पीड़ा पैदा कर दी है। हुण मैं अर्ज करा पीड़ा कितनी कह, किस नाल कन का जो दर्द होंदा है, या दाड़ दुखदी है, या मत्था जो दुखदा है, किहड़ी पीड़ा नाल तशबीह दी है भाई गुरदास जी ने दी है। मैं थोड़े सामने रखा भाई साहब भाई गुरदास जी, गुरु घर दे वेद व्यास और गुरबाणी दे पहले टीकाकार, इस वास्ते आप दे कलामे पाक नूं कुंजी कहा जाता है, शब्दां दी कुंजी खोल देना। ये पीड़ा कितनी आउंदी है, हुण जितनी पीड़ा का जिक्र कर रहे हैं ये तुसी आप गिणती करते जाना। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर गात है। बलदी हुई अग दे मनुख गिर जाए जिंदा, ते निकलन का कोई साधन ना हो, कि जिंदा अग दे जल रहा हो। भाई साहब कहते हैं ये पीड़ा कट्ठी करिए। अगन जलत जल बूढ़त, बड़े गहरे पानी दे डुबकी लग रही होवे, गोते खा रहा होवे, डुब रहा होवे, ते बचण का कोई साधन ना हो। उस वक्त शरीरक ते मानसिक जो पीड़ा होंदी है, भाई जी कहते हैं वह भी इकट्ठी करिए। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, कोबरा फनेर नाग सप डंग मार जाए, जहर चढ़नी शुरू हो जाए, ते ओदा सदका प्राण निकलने शुरू हो जाए। उस समय जो मानसिक ते शरीरक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहते हैं ये भी इकट्ठी करिए, जोड़ते जा रहे हैं। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर गात है। अनेकां तरह के शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी होवे, ते रोम रोम दे चों खून निकल लिया होवे। कितनी पीड़ा होवेगी, एक रोम जख्मी नहीं, सारे। मौलाना रूम ते कहंदे ने हमा तन दाग दार शुदम, कुंबा कुजा कुजा ने हम। हकीम नूं कहंदे ने केड़ी केड़ी थां ते फाया लाएगा, केड़ी केड़ी थां ते मरम पट्टी करेगा। हमा तन दागदार शुदम, रोम रोम दे च जख्म है, सारा तन जख्मी, किथे फाया लाएगा, पट्टी किथे बनेगा। हमा तन दागदार शुदम, कुंबा कुजा कुजा ने हम। ये फकीर इस पीड़ा चो निकले है, ता जिक्र कर रहे, इस दर्द चो निकले है, ता ही तो निकले है। एवं नहीं गुरु रामदास जी महाराज के कह रहे, मन की बिरथा मन ही जाने। इस अवस्था नूं ओ जिक्र कर सकता है, कह सकता है जिन्हों ये पीड़ा हुई है, लागी होए सो जाने पीर। हमा तन दागदार शुदम, कुंबा कुजा कुजा ने हम। कई हैरान भी आते ने, इतनी पीड़ा ईश्वरी नियम है, रब्बी नियम है। पर सूत दी पीड़ा तो लंघे बिना कोई स्त्री मां नहीं बन सकती, किसी दी गोद हरी नहीं होती। अपनी गोद विच कोई उसने लाल देखना है, परसों पीड़ा तो ते लंघना पैंदा है। एक तन दे चां होर तन नूं जन्म देना है, बड़ी भारी तन की पीड़ा चो लंघना पैना है। अपने मन दे चों ही परमात्मा नूं जन्म देना है, मन तू जोत स्वरूप है, बड़ी भयंकर मानसिक पीड़ा तो लंघना पैना। ईश्वरी नहीं है, रब्बी नहीं है। पीड़ा तड़पा देगी, पीड़ा रुला देगी, ये भी मैं अर्ज करते हैं। चाहे तन की पीड़ा है, सीमा तो वध गई है, तड़पा देगी, रुला देगी। पीड़ा चाहे मानसिक है, सीमा तो वध गई है, तड़पा देगी, रुला देगी।
मैं ते ऐसा कहने दे कोई संकोच नहीं करता, जिन्ने भगत संत होए ने जितने ओ रोए ने की दुनियादार रोएगा। कोई पुत्र दे विछोड़े च रोया, कोई प्रभुता दे विछोड़े च रोया, कोई धन संपदा दे विछोड़े च रोया, भगत भी रोंदे ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक, और रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वहे चले जी। बड़ी भयंकर पीड़ा, पीड़ा तड़पा के रुला देगी। कहते ने किसी भी तीरथ दा जल मनुख दे गुनाहां नूं नहीं धोंदा। प्रभु विछोड़ा दी पीड़ा तड़पे होया मन, निकले दो हंजू जन्मां जन्मांतरां दे पापां नूं धो देंदे ने, जन्मां जन्मांतरां दे गुनाहां नूं धो देंदे ने, धोने पाने ही नहीं। ਇਹਦਾ बहुत ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਵਕਤ मैं लंबा चौड़ा खुलासा ना करा, भाई साहब जी ਦੇ बोल रह जाणगे। भाई साहब कहते ने अनेकों तरह के शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी होए, इस पीड़ा नूं भी इकट्ठा करिए। एक पंक्ति, अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है, बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, ग्रीखम और शीत बरखमाए निष्प्रात है। दूसरी पंक्ति, लोड़ा अनेका होवन ते पूरी एक भी ना होवे। ऐसे हालत दे जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहते वो भी इकट्ठी करिए। बहुत सारिया लोड़ा होवन तन दियां मन दियां पूरियां, एक भी ना होवन, पूरी करन दा साधन है ही कोई नहीं। उस समय जो तन शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहते वो भी इकट्ठी करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, पराई अधीनगी ते रहना पै रहा होवे, कसूर कुछ भी ना आवे तो गालां कड्ढी जाए, गलती कुछ भी नहीं है तो ताड़ना करी जाए। उस समय जो मानसिक पीड़ा होंदी है, कोई भुल भी नहीं की ते गालां, गलती भी नहीं की ते ताड़ना, पर अधीन की मजबूरी है, मजबूरी है, कमजोरी है। उस समय जो मानसिक पीड़ा होंदी है वो भी इकट्ठी करिए। शरीर दे कोई भयंकर रोग है, बीमारी है, ये जो पीड़ा है भाई जी कहते हैं ये भी इकट्ठी करिए। ग्रीखम और शीत बरख माए निष्प्रात है, बड़ी गर्मी है ते धुप दे च रहना पै रहा होवे, लू दे च बचण दा कोई साधन नहीं। कल ही कोई मैनू फोन ते शायद दस रहा सी इंडिया तो 113 मौतां हो गई महाराष्ट्र ते मध्य भारत इन्नी भयंकर लू, इन्नी भयंकर अग वरस रही है, बचण का कोई साधन ना हो, उपराला ना हो। बड़ी भयंकर ठंड ते बचण का कोई साधन नहीं। बहुत जोर दी बारिश ते दिन रात बरखा दे च रहना पै रहा होवे, बचण का कोई साधन। ग्रीखम और शीत बरखमाए निष्प्रात है, दिन रात बारिश दे च रहना पै, दिन रात भयंकर ठंड दे च रहना पै, ते दिन रात भयंकर गर्मी दे च रहना। इहदे नाल जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहते हैं वो भी इकट्ठी करिए। तीसरी पंक्ति, गौ द्विज बधु वंश विश्वास बद कोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। कुछ बज्जर पाप मन्ने हैं ते बज्जर पाप दे करदियां मानसिक कलेश हो जाता है। उस मनुख नूं मानसिक चैन नसीब ही नहीं हो सकता जो बज्जर पाप करे। बज्जर पाप भाई गुरदास जी ने पौड़ियां च भी लंबा चौड़ा खुलासा किया है।
पर उसनों ना सिर्फ इस पंक्ति नूं तुहाडे सामने रखियो। गौ नूं मारना बज्जर पाप। भाई साहब भाई गुरदास जी, गौ द्विज है। ब्रह्मवेता जो ब्रह्म नाल जुड़ी हुई आत्मा है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण किहनूं कहंदे? किसी जात का नाम नहीं, ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मण। पंडित विद्वान नूं कहंदे ने ब्राह्मण जो ब्रह्म का चिंतन करता है, जात नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। महान टीका भाई मनी सिंह का देख के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कह दिता सी, तू ते साडा ज्ञानी सिंह है, तू ते साडा ज्ञानी सिंह है। सारे उसनूं ज्ञानी जी कहण लग पे। उस दिन तो बाद गुरु घर दे कथावाचकां नूं या ग्रंथी सिंघां नूं ज्ञानी जी कहण लग पे। भाई मनी सिंह तो शुरू है, नहीं तो बाबा जी आखिया जांदा सी, भाई साहब कहंदे सी। इन्ना ही सी पदवी भाई साहब की आउंदी सी या बाबा जी की। ज्ञानी दी चली है भाई मनी सिंह तो, इस तो पहले नहीं सी। ब्राह्मण जो ब्रह्म का चिंतन करता है, उसकी बेइज्जती करनी या उन्होंने मारना बज्जर पाप है, नाकाबिले माफ है। गौ द्विज बधो वंश विश्वास बद कोट हत्या। बधो अपनी स्त्री नूं मारना अबला है, वो पुरुष के तन का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसा शरीर प्रभु ने उसका बनाया है कि उस ते जुल्म करना बज्जर पाप। विश्वासघात करना बज्जर पाप। गुरु नाल द्रोह करना बज्जर पाप। अनेका तरह की तृष्णा वस हो के अनर्थ करना बज्जर पाप। इस पंक्ति इतनी गिनती करते हैं। गौ द्विज बधु वंश विश्वास घात तृष्णा अनेक दुख दोख समघात है। सारा शरीर का चोला इन्हां गुनाहां नाल लिबड़िया हुआ है। हर गुनाह मानसिक बेचैनी पैदा करता है। हर गुनाह, हर पाप। पता नहीं मैं थानू सरवण कराया है कि नहीं। मेरा एक क्लास फैलो से कट्ठे पढ़ते रहे हैं खालसा हाई स्कूल दे। देश की वंड हुई हरियाणा फरीदाबाद दे च आ गया। किसी वक्त फरीदाबाद भी पंजाब सी, दिल्ली दे कोल। ते साडी जिहड़ी ट्रेन पिछों आई वो राजस्थान चली गई। रेलवे स्टेशन डिपार्टमेंट इन्हां गड्डियां नूं थां थां ते भेजदा सी, वंड करदा सी। उन्हां दी ट्रेन फरीदाबाद गई। वो उत्थे वड्डा होया। आप सुन के हैरान हो गए। दिल्ली फरीदाबाद सारे उसके नाम तो वाकफ। किस करके वाकफ? नामी गुंडा, नामी कातल। पुलिस भी उस तो डरदी सी। कतल कर लैंदा सी, कोई सबूत नहीं, छुट जाता सी, कोई गवाह। बंदा मारना, कीड़ी मारना। जिस गली चो किधरे लंघे लोग दरवाजे बंद कर लेंगे। इतना भयंकर उसका नाम हो गया हरियाणा पुलिस दे, दिल्ली पुलिस दे। लेकिन गजब की गल, किसी भी गुनाह का सबूत नहीं रहने देता और कोई डर दा मारा गवाही नहीं देता। उन्होंने पता सी असीं गवाही दी नहीं तो दूजे दिन है गए। काफी चिरां तो मैं नाम सुनिया सी, पर बहुत लंबा समा हो गया कदी मिले तो है नहीं। मेरा बचपना जवानी च बदलिया, उहदा बचपना जवानी च बदलिया। जवान बन के नामी गुंडा कातल बने। एक दिन फरीदाबाद 10 साल दे 2 दफा जाता है। एक साडे इलाके च महापुरुष होए संत भगत सिंह, उन्हां दी बरसी मनाई जाती है। उसते एक भगत जोधा राम सिंह। भगत जोधा राम सिंह जी की बरसी से मैं पहुंचा।
गुरुद्वारे ने रेस्ट हाउस अलग बनाया है, 4 कमरियां का आए गए ਲਈ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ। मैं ਉੱਥੇ ठहरिया होया, वो आ गया, मैनू नहीं पता सी वही है। और गजब की गल, मेरा क्लास फेलो, मेरा जिगरी दोस्त सी उदों, और मेरा हम नाम है, जो नाम मेरा है मां बाप ने उसका नाम भी सन सिंह रखे, पर हुण पतत सी सिखी रूप विच नहीं सी। आके बैठे, मेरे को 3-4 सज्जन फरीदाबाद से बैठे सन, उठ के चले गए। मैं कहा दो गया, अधूरी गल उन्होंने की सी, कुछ गल कर रहे सन, एकदम उठ के चले गए। थोड़ी देर वो चुप रहा तो मैं पूछ लिया, मैं मित्रा किस तरह आए? मेरा नाम लैके कहने लगे मैनू पहचाने? मैं नहीं, मैं थोड़ा क्लास फेलो, कट्ठे बैठते सी, थोड़ा दोस्त। अपना नाम दसिया, हैरानगी हुई मैंने। हुण मैं तो सुन चुकिया सी, नामी कातल, नामी गुंडा। इतना उसने आखिया तो ज़ारो ज़ार रो पिया। मन चों एक ख्याल से निकल गया, कोई अनर्थ करन नहीं आया, कोई मतलब हो रहा है इसका। ज़ारो ज़ार रो पिया। मैं कहा मित्रा गल की है? कहता इतना बेचैन आ, मैनू नींद नहीं पैंदी जितने चिर तक पूरी बोतल पी ना लवां, मैनू रात नूं नींद नहीं आती। इन्ना बेचैन, ये बेचैनी मेरे को सहारी नहीं जाती। ज़ारो ज़ार रो पिया। कहन लगा तुसी कथा करदे हो, मैं सुनिया लोकां को, तुसी इस लैन दे चो, इहदा कोई इलाज है? मैं कहा हज़ारां घर तू बर्बाद कीते ने, सैकड़ियां नूं तू रोण ते मजबूर कीता है। मनुख जद किसे नाल बुरा करदा है ते इह सोच के मैं दूजे नाल कर रहा, धर्म कहंदा नहीं अपने नाल कर रहा, कतई दूजे नाल नहीं। ये पलट के वापस आएगा। दिता लईए अपना, अण दिते किछ हथ ना आवे। तू किसे दे रस्ते च रोड़े अटकाए ने, दीवारां तेरे रस्ते च भी। तू किसे दे रस्ते च कंडे विछाए ने, फुल तेरे रस्ते च भी कोई नहीं। तू किसे दी पग लाइए, तेरे सिर ते भी सलामत नहीं रहनी। रब्बी नहीं है। इते दिता लईए अपना, जो कुछ जगत नूं देगा पलट के वापस आएगा। मनुख दूजे नाल बुरा करदा है, ये जान के मैं दूजे नाल कर रहा, अपने नाल कर रहा। मैनू कहन लगा, मैनू समझ आए इलाज, कुछ इलाज। मैं पहला इलाज तो यह है, तू सत्संग दे चाह। देखो बरसी मनाई जा रही है, मैं कि अपने इलाके च महापुरुष होए भगत जोधा राम सिंह जी, मुसलमान उन्होंने दर्शनां नूं आउंदे सन, उन्होंने कोल सिक्ख्या लैंदे सन। तो वाह, कहने लगे फिर मैं जब आया तो फिर कथा सिर्फ मैं ही सुनियागा, और नहीं उत्थे किसी ने बैठना। मैनू ये कहने लगा। मैं कहा इस गल की तू चिंता ना कर, मैं संगतां नूं प्रेरांगा, मैं बेनती करांगा, तू आ कम से कम 3 दिन ते आ। फिर इस तो बाद तू पाठ करी, तू पंजाबी जानदा, खालसा हाई स्कूल का विद्यार्थी, वो तू बाद करी, पर तू 3 दिन ते आ। इन्ने ज्ञानी आए ने, अकाल तख्त दे सिंह साहब भी आए हुए सन, और आउंदे ने हर साल उस बरसी। 10-12 रागी जथे सन, गुणी जन सन। मैं कहा सुन सारे, उड़ीक मैं करदा रहा, देखदा रहा संगत दे इंडिया दे बाहर भी हॉर्न लांदे ने गली दे दूर दूर तक, आवाज़ां बड़ी दूर तक जांदियां, खास विशेष समागम है। मैनू किसी ने दसिया उत्थे खंबे च जिहड़ा हॉर्न लगे उत्थे ते खड़ा है, गुरुद्वारे नहीं आया, नहीं आता, उत्थे खड़ा है, उत्थे सुनदा पिया।
इतना कोई थानू सुनाण दा मेरा मतलब इतना बेचैन, हर गुनाह मन नू बेचैन कर देंदा है, हर अपराध मन नू परेशान कर देंदा है और जीवन सिर दा बोझ बन जाता है। खुदकशी करके मरिया, आत्महत्या करके मरिया। हैरानगी हुई, कहता इतना बोझ, इतना तनाव मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं नहीं सहार सकता। बई इन्नियां नू परेशान किया तू, इतनियां नू रुलाया, इते दिता दईए अपना अण दिते किछ हथ ना आवे। भाई साहब कहते हैं कोई मनुख इतने बज्जर पाप करे, कितने गऊ दिज बधु वंश विश्वास बद कोट हत्या, करोड़ा तरह के कतल करे, एक नहीं ते करोड़ा गौवां मारे, भगतां नू मारे, विश्वासघात करे, कुल द्रोह करे, स्त्री नू मारे और गुरु नाल द्रोह करे। गऊ दिज बधु वंश विश्वास बद कोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। ये तीन पंक्तियां एक दफा मैं फिर थानू सुना दें। मेरे ख्याल कोई ऐसी पीड़ा, कोई ऐसा दुख रहा नहीं जिसनों भाई साहब ने गिण नहीं लिया, जिसका जिक्र नहीं किया भाई गुरदास ने। पंक्तियां मैं एक दफा फिर थानू सरवण करावां। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर गात है। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, ग्रीखम और शीत बरख माय निष्प्रात है। गौ दिज वधु वंश विश्वास बद कोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। अनेक प्रकार जोर सगल संसार सोदे, जगत दे सारे दुखा नू मैं इकट्ठा करके देख ले। भाई साहब भाई गुरदास जी, जगत दे सारे दर्द पीड़ा मैं इकट्ठा करके वेख लिया। अनेक प्रकार जोर सगल संसार सोदे, पिया के बिछो पल एक ना बुझात है। शब्द तीर दी तरह लगे है, परमात्मा दा विछोड़ा होया है। भाई साहब कहते ने ये पीड़ जगत दी कोई, ये सारियां पीड़ा एक पल का मुकाबला भी नहीं कर सकती, एक पल जितनियां भी नहीं। तो तुसी हुण खुद अंदाजा लगाओ भगत कितनी पीड़ा चो लंघदे, कितनी भयंकर पीड़ा चो लंघदे। लागी होए सोचाने पीर। लेकिन एक होर भी अर्ज करते हैं, ध्यान नाल सुनना। जिस दिन ये तीर लग्या और ये पीड़ हुई, बंदा एक दुआ भी करता है, अंदरों अरदास भी करता है, हे प्रभु नहीं मिलना ते ना सही ये पीड़ा रहन दे। ऐ भी सुन लो, ऐ भी होता भयंकर पीड़ है, पर इस पीड़ा च भी कोई रस है। इस वास्ते गुरबाणी इसका भी जिक्र कर दिए। कबीर ने बड़ा खोलिया, समय इजाजत नहीं पे देंदा, एक निक्का जिहा शेर तुहानू सरवण कराते हैं। अमीर खुसरो होए ने सूफी संत शाहजहां दे वक्त दिल्ली दे चले, निजामुद्दीन दे चेले सन। लगदा है तीर उन्होंने लगे, वो कहते ने या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। नहीं मिलता खुदा ना मिल, कोई गल नहीं, मेरा कोई गिला नहीं, पर ये जो मेरे को पीड़ा है, ये जो मेरे को तड़पना है, ये ना खोई, ये रहन दे, ये पीड़ा रहन दे। ये हंझू गुनाहां नू धो देंदे ने, ये हंझू पापां नू धो देंदे ने, हिरदे नू फुल वर्गा कर देंदे। नहीं मिलिया रब ते ना सही, उहदे विछोड़े का महसूस होना भी बहुत कुछ दे जाता है, बड़ी झोली भर जाता है। पर यह उदों आउंदा है जब शब्द तीर की तरह लगे, पहुंच नहीं। मैं फिर अर्ज करा, ध्यान ने चलना है, शब्द ने चलाना है, धर्म तक पहुंचना है। जैसे ध्यान शब्द दे नेड़े आएगा, शब्द तीर की तरह लगेगा, तीर की तरह लगेगा। इसका जो लंबा चौड़ा खुलासा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे मौजूद है,
हो सके मैं फिर थोड़े सामने रखांगा, क्योंकि समा हो गया, समय की उलंघना बहुत ना करिए। ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇੰਜ ਚਲਾਈਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਲਾ ਤੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿੱਖਦਾ ਤੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਬਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਮਨ ਸੁਣੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਖ ਕੋਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ। तो सिर्फ 5 दफा, ज्यादा नहीं, काफी समा हो गया, आप काफी समय दे बैठे हो। कोशिश करना ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਜੋ ਧੁਨ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਸੁਣੇ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਰਾਹੀ ਹੈ, ਯਾਤਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਧੁਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹੀ ਹੈ। तो सिर्फ 5 दफा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸੁਣਾਣਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਬੋਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ज्ञान